Yes, question number 15. A stone is thrown vertically upward with the initial velocity of, so here is the stone and it is thrown vertically upwards with an initial velocity of 40 meter per second. 40 meter per second, taking g is equal to 9.8. सॉरी 10, taking g is equal to, तो बॉडी जो है स्टोन जो है उसका जरा g की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव -10 मीटर per second square, -10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. So maximum height जो है हमने फाइंड करनी है कितनी हाइट तक जाएगा, और जब मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0. ओके, what is the net displacement and the total distance covered by the stone? What is the net distance and covered by the and net displacement of the stone? So therefore beta yes, u is given, g is given, h is not given, and v is given. So again using the same formula, v square minus u square is equal to 2gh. So v square is 0 square minus u square is equal to 2 into g की वैल्यू दी है -10, ओके, into h हमने फाइंड आउट करना है. So it is equal to -20 into h, okay, and u square is equal to what? -40 square. -40 square means 1600. So it is equal to -1600 is equal to -20h. माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल. So therefore h is equal to 1600 upon 20. So it is equal to 80 मीटर. तो बेटा देखो ये जो स्टोन है ये 80 मीटर ऊपर गया, ओके, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस कवर कितना किया इसने 80 मीटर ऊपर जाती बार प्लस 80 मीटर इसने आती बार किया, ओके, तो टोटल डिस्टेंस कवर, write down distance covered by the total distance covered is equal to 80 plus 80 is equal to what 160 मीटर. और देखो बेटा स्टोन की डिस्प्लेसमेंट कितनी, यहां से मैंने इसको ए पॉइंट से छोड़ा, ये बी पॉइंट तक गया और बी से दोबारा ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है नेट 0. नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट 0 मीटर. नेट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट 0 मीटर. Yes, question number 16. Question number 16 bete, calculate the force of gravitation between the earth and the sun given that the mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 kilogram and the sun is 2 into 10 raised to 30 kilogram. The average distance between the two is 1.5 into 10 raised to power 11 meter. Okay, so we know F is equal to G into mass of earth into mass of sun divided by r square divided by r square. So it is equal to G की value 6.67 into 10 raised to power -11. Mass of earth is 6.0 into 10 raised to power 24 into mass of sun is equal to 2 into 10 raised to power 30 divided by distance between the two is 1.5 into 10 raised to power 11 square. And write down beta, it will come out to equal to 35.6 into 10 raised to power 27 Newton. 35.6 into 10 raised to power 32 Newton. 10 raised to power 32 Newton. Yes, question number 17. A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high. Yes, beta ji. Here is a tower, and from the high tower, this is like point A, and here is point B.
Okay, and let a stone is dropped from the height of a tower, high tower of height 100 meter. Okay, कितनी height इसकी 100 meter of a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upward with the ground from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. Yes बेटा, जब ऊपर से स्टोन ड्रॉप किया हमने ए से बी वाली साइड को, उसी टाइम बी से एक स्टोन ऊपर को फेंका हमने. ओके, okay, so let both the stones they meet at point C. Both the stones they meet at point C. Okay, let the distance covered by the stone from A to C is let x1, or you can say let it is h1. Okay, and the distance covered by stone from B to C ये कितना आ जाएगा this distance? ये आएगा बेटे कितना बोलो शाबाश x2, और x2 होगा कितना, इट इज इक्वल टू 100 माइनस h. अगर h1 ये आ गया तो ये बचा कितना, बचा यहाँ पर h1. ओके, let the time taken by the stone from A to C is equal to t1, and from B to C दूसरे स्टोन ने टाइम लिया कितना बोलो शाबाश t2. लेकिन देखो जब ये दोनों ऊपर मैच करेंगे, एक को अपने ए से फेंका दूसरे को बी से फेंका एट ए टाइम, तो जब ये एक दूसरे को मैच करेंगे जाके मीट करेंगे तो टाइम तो सेम हो जाएगा ना. तो t1 इज इक्वल टू t हो जाएगा और t2 इज इक्वल टू हो जाएगा t. ओके ओके, तो जब इस ऊपर वाले स्टोन को हमने मैंने छोड़ा था तो u1 इज इक्वल टू व्हाट 0. इसके लिए g की वैल्यू कितनी है प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसने टाइम कितना लिया t1 इक्वल टू t. ओके, और इसने डिस्टेंस कवर कितना किया वो सवाल h1 जो है इसमें कवर डिस्टेंस x1. ओके, x1 और यू कैन राइट s1. तो देयरफॉर फॉर द स्टोन, ऊपर वाला स्टोन है फ्रॉम a, या यू कैन राइट हियर फ्रॉम a to c. yes, S1 is equal to U1 T1 plus half into G into T1 square. Okay, so therefore S1 is equal to what? बोलो बेटा ये शाबाश, S1 और H1 you can also say H1 is equal to U की वैल्यू कितनी है U1 0, so ये टर्म 0 हो गई, प्लस 1/2 into G की वैल्यू कितनी होती है 9.8 into T1 की जगह T स्क्वायर आएगा. ओके, तो 9.8 कितना होता है बेटे 4.9, इट इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो गया. देयरफॉर हमारे पास आ गया S1 इज इक्वल टू 4.9 T स्क्वायर. ओके, ये है. यस, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. For stone number 2, U2 is equal to what? U2 is equal to 25 meter per second. G की वैल्यू क्या होगी बेटा माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, एंड डिस्टेंस कितना कवर किया इसने बोलो शाबाश, that is equal to distance, इसका जो डिस्टेंस है h2 या x2, that is equal to what 100 minus h1. okay, so therefore we know h2 is equal to what, h2 is equal to what 100 minus h1 is equal to what u2 t2 plus half into G into T2 here. Okay, so therefore ये आगे बढ़े हमारे पास कितना आ गया 100 minus H1, sorry 100 minus H1 is equal to 25. T2 की वैल्यू कितनी है T minus 1/2
into 9.8 d square. So it is equal to 100 minus h1 is equal to 25t minus 4.9 t square. This is equation number 2. This is equation number 2. Putting the value of h1 or s1 from 1 into putting the value of s1 या h1 from 1 into, then we will get better 100 minus minus है और h1 की जगह कितना बोलो सॉस 4.9 t square is equal to 25t minus 4.9 t square. 4.9 से 4.9 t square क्या हो गया कैंसिल हो गए. तो ये आ गया बेटे हमारे पास 25t is equal to 100, therefore t is equal to 4 second. Okay, therefore t is equal to what 4 second. तो ये 4 सेकंड के बाद स्टोन मिलेंगे. ओके, नाउ how much distance is covered by stone number 1 from A to C? You can find it by putting the value of T in equation number 1. So therefore H1 is equal to what 4.9 into 16. 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा T का 16. Okay, so it will come out बेटे 78.4 मीटर. तो ऊपर वाला जो स्टोन है वो हाउ मच डिस्टेंस कवर करेगा यहां तक वो करेगा कवर कितना 78.4. तो नीचे वाला कितना करेगा पुरुषावास 21.6 है ना. तो नीचे वाला करेगा 100 minus 78.4 is equal to 1.6 मीटर. ओके, यस बेटे डन. Just 1 minute. Yes, number 2 he is asking the maximum height it reaches. So we know b square minus u square is equal to 2gh. What is the value of b 0 square minus u की वैल्यू कितनी आ गई 29.4 square is equal to 2 into g की वैल्यू कितनी आएगी minus 9.8 and h जो है हमने फाइंड आउट करना होगा. So it is equal to minus 29.4 square is equal to कितना आएगा बेटा 19.6 h. ओके, और h is equal to माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल और कैलकुलेशन के बाद आएगा बेटा यस राइट डाउन h is equal to 44.1 मीटर 44.1 मीटर. ओके, सो हमारे दो क्वेश्चन आ गए. फर्स्ट तो आ गया वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एंड सेकंड आ गया डिस्टेंस कवर्ड और हाइट कवर्ड. नंबर 1 इट्स पोजीशन आफ्टर 1 सेकंड. लिसन बेटे आफ्टर 4 सेकंड है ना 3 सेकंड तो देखो इसने ऊपर को ले लिए ऊपर जाके फिर इसकी वेलोसिटी कितनी है v कितनी हो गई. अब जब ये नीचे को आएगा तो इसकी u भी 0 होगी ना. तो ऊपर जाके यहाँ पे जब ये नीचे को आएगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 और g की वैल्यू जो नेगेटिव थी वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, और टाइम कितना लेगा है हमें पूछा भी 4 सेकंड के बाद 3 तो इसने जाने को ले लिए और 1 सेकंड ऊपर से मान लो यहाँ पे आता है पॉइंट सी पे. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ BC एट हाउ मच टाइम टेक दैट टाइम टेक t and t is equal to what 1 second. t is equal to what 1 second. t की वैल्यू कितनी आ गई बेटा बोलो शाबाश बोलो 1 second. ओके, so therefore and let the distance covered by it is h2. So therefore we know write down we know s is equal to ut. We know
S is equal to UT plus half GT square। तो कितना आ गया S, S या हमने जो माना H2, तो बोलो शाबाश बेटे, U की वैल्यू कितनी है 0, T की वैल्यू है 0 प्लस 1/2 into 9.8 into T स्क्वायर। T कितना है 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 4.9 है ना। So therefore H2 या S distance covered by the stone in 1 second from the top from point B is equal to 4.9 meter, 4.9 meters। ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, A to B कितना डिस्टेंस कवर किया था 44.1 और फिर नीचे आने को 1 सेकंड में कितना किया, तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताने पड़ेगी ना। तो आफ्टर 4 सेकंड्स the position of the stone is seen and its height is equal to what, its height is equal to what, 44.1 minus 4.9। okay, so it is equal to how much, और शाबाश बेटा और इसको सबस्ट्रैक्ट, हरी 39.39.2 मीटर। ओके, ओके बेटा जी। तो बेटा जी ये थी आपकी एक्सरसाइज। ओके, आज आपका सिलेबस जो था वो कवर हो गया, ठीक है। नाउ आज ही आपने मेरे को के इवनिंग तक जो ऑनलाइन बच्चे, ओके कल इवनिंग तक, ओके कल इवनिंग तक आपने अपनी नोटबुक्स का मेरे को, ठीक है, क्या भेजना है बोलो साहब, पीडीएफ बना के भेजना है, पेज नंबर देना, पेज नंबर बहुत जरूरी है। और जब आप पीडीएफ सेंड करेंगे बेटे तो सबसे पहले अपना नेम, योर रोल नंबर एंड क्लास मेंशन करना, ओके, देन सेंड मी योर पीडीएफ। ओके, और आपका जो कॉपी है, ठीक है, उसके ऊपर आपने नंबरिंग जरूर करनी पेजेस की। और जो ऑफलाइन बच्चे 4-5 बैठे हो, ठीक है, 5 साथ, ठीक है, यू विल सबमिट योर नोटबुक टुमारो। ओके, ओके, ठीक है, हाँ, यस, जस्ट almost same mass, or let here is a table, and at the top of the table 2 cups or something others are lying of same mass, okay, are lying. These are 2 cups of tea, okay, this is cup number 1, this is cup number 1, this is cup number 2. So we know according to Newton's law of water, this is universal gravitation law, ये जो कप नंबर 1 है कप नंबर 2 को खींच रहा है और कप नंबर 2 जो कप नंबर 1 को खींच रहा है। कैसे बैठे हो आप, फिट प्रॉपर्ली, ओके। तो एक्चुअली में जो खींच रहा है, जो हो रहा है, लॉ हो रहा है F इक्वल टू G इनटू मास ऑफ दिस कप इनटू मास ऑफ सेकंड कप डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। तो लेकिन फिर ये कप चलते क्यों नहीं है बोलो साहस। तो बेटे इनको चलने के लिए जब जाना है वो, तो टेबल के और कप्स के बीच में फ्रिक्शन होगा ना। अगर ये फोर्स ऑफ, ये जो फोर्स ऑफ क्या है, ये ग्रेविटेशन है, अगर ये फ्रिक्शन वाली फोर्स से ज्यादा हो जाए तो कप चल पड़ेंगे ना। ओके, तो why these two are not moving towards each other, then what you will say that the force of friction between the table, top of the table and bottom of the cup, that is greater than the gravitational force, that is greater than the what, gravitational force। okay, okay, and we ready, tomorrow will be your test, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा, ठीक है, और आपका वीडियो पे, ओके। आपको मैं कुछ क्वेश्चन यही भी दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप से, तो मेरे को बस इतना होगा लिखने छापने पर, ओके। और ऑनलाइन वाले बच्चों को भेज दूंगा मैं गूगल फॉर्म, कोई गूगल फॉर्म आपने घर में जाके सॉल्व करना, ओके। हाँ हाँ, उसको खुला रखूंगा मैं, ठीक है, ओके। गूगल फॉर्म जो है बनाऊंगा आपको, उसमें 10-20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 1 मार्क्स होंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं आपके। न्यूमेरिकल्स में बेटे यस ध्यान रखना, गूगल फॉर्म में पावर जो है ऊपर नहीं जाती है ना,
ओके, जैसे लास्ट टाइम भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ना गूगल फॉर्म में, व्हाट इज द वैल्यू यूनिट ऑफ कैपिटल जी, तो उसमें था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, पर किलोग्राम स्क्वायर। तो वहां पे क्या आता है मेरे सॉस, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर नहीं आता, नीचे रह जाता है ना। तो जैसे हम उसको अगर हमने टाइप करना हो तो उसको वो करके ऊपर भेज देते हैं, पावर में चला जाता है ना, इसमें नहीं जाता है वो। समझ गए? हाँ। और माइनस माइनस तो लग जाते हैं सारे, कैलकुलेशन भी आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो फटाफट आपने न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करके क्या करना है, थोड़ा सा कॉपी के ऊपर कैलकुलेट करके, ठीक है, उसका जो आंसर होगा ऑप्शन वो आपने उसको टिक करना है। ओके ओके बेटा, हैं? कल पीरियड नहीं है, लेकिन 12 बजे के बाद मैं गूगल फॉर्म भेज दूंगा ना। ओके। हाँ। सतवीर सर, यस सर। तो गूगल फॉर्म कर दें सर से प्लीज, अटेंडेंस वाला। हाँ जी बेटा, यस। कर दिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी क्वेरी? आपने बेटा न्यूमेरिकल्स भी ढंग से पढ़ लिया, ठीक है। हाँ, वैसे तो मैंने करवा दिया न्यूमेरिकल्स, और उसको ढंग से करना आपने। आपको इसमें ही आएगा ना चैप्टर ग्रेविटेशन ओनली, ग्रेविटेशन ओनली नहीं आएगा, सारा आएगा। ओके ओके। हाँ, पूरा आपको आएगा, क्या होता है इसको, पूरा मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और उसके बाद किया हमने ग्रेविटेशन, है ना। 3 चैप्टर को हमारे, अब एक चौथा चैप्टर बता हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, एक बच्चा हमारा, ठीक है, उसके बाद होगा। तो मोशन में से थोड़ा कम आएगा आपको, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से थोड़ा ज्यादा आएगा, और इसमें से सबसे ज्यादा। ओके ओके, जितना भी होगा। सतीश सर, यस सर। हो गया सर से? जी सर। यस बेटा जी, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, मार्क योर अटेंडेंस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क प्लीज। यस सतवीर सर,